Hello everyone, this is Deepa. Students, I'm again here with the same chapter 4 of Geography, that is Agriculture. Yesterday in my previous video, we have learned about some of the economic activities, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector, and we learned about agriculture and its meaning, and we have seen some of the agriculture activities. We can say brinjal farm, rearing of livestock, sunflower farms, paddy fields, apple orchards, etc. And we have gone through the percentage of the arable land at the world level and meaning of arable land. And here we have discussed about the inputs and the process and outputs of the cultivation. We can say seeds, fertilizer, machinery, labors are the inputs, and these are the process which we have to work uh, on the field when we want to grow a crop. So we have to do plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting, and after that we'll get these outputs: crops, wool, dairy products and potty farms. Here it is written, fertilizers, machinery and labors are the input, and these are the work which we have discussed, and these are the outputs. As a wool, as a rearing, from the rearing of livestock we'll get, and some dairy products we get milk from dairy farm and egg from poultry farms. And here we have learnt about different kinds of cultivation, that is agriculture, horticulture, sericulture, viticulture and pisciculture. So please have a look. Horticulture is the growing of vegetables, flowers and fruits for commercial purpose, and cultivation of grapes is viticulture, and rearing of for fish is pisciculture, and rearing of silkworm is sericulture. As I have told you yesterday that we'll continue types of farming. So students, whenever we are talking about farming, farming is practiced in various ways across the world depending upon geographical condition of the area, demand for the product, labor available and level of technology. Student, we can call it physical inputs also when we are talking about geographical condition, and demands for the product, labor available and level of the technology, these are included into human inputs. Whenever we are talking about physical input, we have to include sunshine, rainfall, temperature, soil, slope, topography. These all things are included in the physical inputs, as we can say geographical conditions also. And whenever we are talking about human input, that is demand for the product and availability of the labor, storage, machinery, chemicals, we can say level of technology, these are included into human inputs. ये सब एफर्ट्स ह्यूमन को लगाने पड़ते हैं, हम कह सकते हैं मानवीय निवेश हैं। और जो ऊपर हैं हमारे, जिनकी बात की हमने, सनशाइन, टेम्परेचर और सॉइल और रेनफॉल, ये हैं हमारे जोग्राफिकल इन्वेस्टमेंट, फिजिकल इनपुट्स हम बोल सकते हैं। नाउ farming is broadly classified into two categories. First one is subsistence farming and second one is commercial farming. It can be further classified also. First of all, I'm just telling you what is subsistence farming. This type of farming is practiced to meet the needs of farmers' family, and traditionally low levels of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified, that we will discuss, means कि ऐसी खेती जो कि इंसान, जो एक कल्टीवेटर है, वो फार्मर अपने परिवार की नीड को फुलफ़िल करने के लिए करता है, अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए
करता है। और जो ये कल्टीवेशन की जाती है ये ट्रेडिशनल ढंग से की जाती है, ताकि अगर इनकी यील्ड कम हो, मतलब उपज कम हो, तो भी इनके परिवार का काम चल जाए। बस बहुत हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ नहीं की जाती है, और फैमिली के लोग आपस में ही मिलके, यानी वी कैन से कि हाउस होल्ड लेबर ही मिल करके, परिवार के लोग ही आपस में मिलके उसको उगा लेते हैं। और इस टाइप की जो सबसिस्टेंस जो फार्मिंग होती है ये बहुत पहले भी की जाती थी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, कहीं पर भी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स अवेलेबल नहीं होते हैं इसमें, और ट्रेडिशनली मैन्योर जो होता है उसको यूज़ करते हैं। जो ट्रेडिशनल मैन्योर था हमारा उसको यूज़ करते हैं, जैसे काऊ डंग वगैरह, इसको यूज़ करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल फार्मिंग जो ग्रो की जाती है वो फ़ायदे के लिए की जाती है। हम कह सकते हैं कि जब एक बड़े लेवल पर फार्मिंग की जा रही है और उसका पर्पस क्या होता है, बेनिफिट के लिए, फॉर द कमर्शियल पर्पस ऑफ द बेनिफिट, एंड वी कैन से कि फॉर अर्निंग मनी, मोर एंड मोर मनी, एंड द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा खर्च किया जाता है और मशीन्स यूज़ की जाती हैं इसमें। About this farming I'll discuss further. Now we'll move towards the farming, broadly classified into two categories, which we can say subsistence farming and commercial farming. Now subsistence farming is further classified into intensive subsistence and primitive subsistence. When we are talking about primitive subsistence farming, at that time it is further classified into two categories: shifting cultivation and nomadic cultivation. So student, this much we will learn in this video, and we'll left it for the another day. So move towards subsistence farming. So here you can see subsistence farming is practiced to meet the needs of farmers family. फार्मर की फैमिली की नीड को फुलफिल करने के लिए की जाती है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल आउटपुट। थोड़ी सी यील्ड हो जाएगी, फैमिली का काम चल जाएगा बस, और हाउस होल्ड लेबर यानी कि घर के लोग ही आपस में मिलके, परिवार के लोग मिलकर ही इस टाइप की कृषि को करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव. Now we'll discuss about intensive subsistence farming. Intensive subsistence farming, here you can see some of the images जो कि intensive subsistence farming की हैं. The farmer cultivates a small plot of land using simple tool and more labor. More than one crop is grown annually on the same plot as the climate is favorable and the soil is fertile. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oilseeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in thickly populated areas of the monsoon regions of Southeast Asia, South and East Asia. So students, यहाँ पर क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप. वी कैन से कि इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है, जो किसान होते हैं एक छोटे से लैंड पर वर्क करते हैं. वी हैव सीन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड और सिंपल टूल्स को यूज़ करते हैं और मोर लेबर बहुत यूज़ करते हैं, यानी कि अपनी फैमिली का इसमें जो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन लेबर जो होता है ये ज़्यादा होता है, मशीन्स का यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं, और मोर देन वन क्रॉप ही हम एनुअली ग्रो कर पाते हैं. और जो प्लॉट के जो सेम प्लॉट ऑफ लैंड पर 1 और 2 क्रॉप ही ग्रो करते हैं, और ये भी तब जब क्लाइमेट इज़ फेवरेबल एंड द सॉइल इज़ फर्टाइल. ये भी तब जब वहाँ पर क्या होता है कि
क्लाइमेट भी, हमारा जो जलवायु है वो भी फेवरेबल रहे, और जो हमारी सॉइल है वो भी कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मैन्योर का, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। इनको नीड होती है कि बहुत ज़्यादा सनशाइन वाले टाइम पीरियड में, मतलब नंबर ऑफ डेज़ हो जिसमें बहुत सनशाइन हो, इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ मिल रही हों, उसी टाइम पर ये लोग क्रॉप को करना सुटेबल मानते हैं, ताकि इनको बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट ना करना पड़े फॉर ग्रोइंग क्रॉप। और यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो है हमारी राइस, और वीट भी है, मेज, पल्सेस एंड अदर, ये अदर क्रॉप्स में आते हैं। आई होप ये तो आप समझ ही गए होंगे, चावल और गेहूं और मक्का और कुछ दालें वगैरह, और ऑयल सीड्स जैसे कि वी कैन से कि सनफ्लावर सनफ्लावर क्रॉप करते हैं, है ना। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रिवलेंट इन थिकली पॉपुलेट, और मोस्टली ये ऐसे एरियाज़ में की जाती है जहाँ पर ऐसे एरियाज में प्रचलित है जहाँ पर पॉपुलेशन थिकली पॉपुलेट है, सघन जनसंख्या हो, ज़्यादा लोग रह रहे हों जहाँ पे, और मोस्टली ये मानसून रीजन्स में ही होते हैं। हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया का पार्ट। स्टूडेंट्स, आवर कंट्री इंडिया इज़ ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी, इसी में ही आती है हमारी, साउथ ईस्ट एशिया का ही पार्ट है हम लोग भी, ईस्ट एशिया के ही। और हमारे यहाँ पर भी मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। Now we'll discuss about primitive subsistence agriculture. Primitive subsistence farming includes two types of cultivation. One is shifting cultivation, second one is nomadic herding. Students, whenever we are talking about primitive subsistence farming, वी कैन से कि प्रिमिटिव यानी कि बहुत पहले प्रचलित थी, प्रिमिटिव मतलब पुराने समय में ऐसा चलता था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इस कल्टीवेशन के बारे में यू हैव लर्नड इन क्लास 7th ऑल्सो, दैट इज़ नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। एंड सेकेंड वन इज़ नोमैडिक हर्डिंग, जो कि जो लोग चलवासी होते हैं, जो लोग मतलब पशु वगैरह चराते रहते हैं, उनके लिए। सो लेट्स सी हियर। Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. It receives heavy rainfall and this helps to in the quick regeneration of vegetation. Students, शिफ्टिंग की मीन्स क्या होता है कि किसी चीज़ को हमने शिफ्ट कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो स्थान उसका बदल दिया, स्थान में अंतर कर दिया, तो इन हिंदी वी कैन कॉल इट स्थानांतरित कृषि। मोस्टली अमेजन बेसिन के एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड एरिया है वहाँ पर, और जो हमारा ट्रॉपिकल अफ्रीका का पार्ट है, अमेजन बेसिन का पार्ट है, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया है, ऐसी जगहों पर इसको ज़्यादा किया जाता है। ये क्या करती है, इसको हेवी रेनफॉल की नीड होती है ताकि वेजिटेशन खुद से जल्दी से ग्रो हो जाए। भारी वर्षा और बहुत वनस्पति जो होती है, ये वेजिटेशन जो होती है, ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है ऐसे एरियाज़ में। एक्चुअली what we have done in this cultivation, इस टाइप की कल्टीवेशन में लोग क्या करते थे, हाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज डन। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। द एशेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture, as I have told you. Shifting cultivation usually starts with cutting trees and a fire which clears a spot of crop production.
In these cases, shifting cultivation is a cycle where farmers come back to the original place after a couple of years. क्या करते हैं हम इसमें, एक जो एक एरिया होता है वहाँ पर जब एक बारी हम फसल ग्रो कर लेते हैं या फिर वहाँ के फॉरेस्ट को कट कर देते हैं और उस एरिया को क्लीन कर लेते हैं और फिर उसको बर्न कर देते हैं, उसको जलाकर उसको जब क्लीन कर लेते हैं उसके बाद जो वहाँ के एशेस वगैरह होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल में. उसके बाद मोस्टली क्या होता है कि जैसे मेज़ है, कैसावा है, पोटैटोज़ हैं, इस टाइप की फसल को क्रॉप को ग्रो किया जाता है. आफ्टर द सॉइल लूजेज इट फर्टिलिटी, मतलब जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है, जब वो इनफर्टाइल हो जाती है, तब उस एरिया को क्या कर देते हैं, अबैंडन कर देते हैं. मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबैंडन्ड? लेफ्ट कम्प्लीटली एंड नो लॉन्गर यूज्ड फॉर और वांटेड, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, उसको छोड़ देते हैं और फिर एक न्यू प्लॉट में शिफ्ट हो जाते हैं. कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट. दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली ट्रीज़ को कट करते जाते हैं और फायर कर देते, बर्न कर देते हैं उनको, और उसके बाद वो जब एरिया क्लीन हो जाता है तब उस पर क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं. उसके बाद जैसे ये साइकिल दोबारा करते हैं, उसके बाद जब फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तब फिर से दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं और अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद फिर से वापस उसी एरियाज़ में भी आ जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट शिफ्टिंग कल्टिवेशन. One thing is very important about this type of cultivation. This cultivation having so many names. Shifting cultivation is known as different names in different parts of the world. As zooming in northeast India. Northeast India में इसको zooming cultivation के नाम से जानते हैं. In Mexico it is known as milpa, and in Brazil it is roca, and in Malaysia it is ladang. So shifting cultivation have so many names, different names in different parts. Now let's move towards nomadic herding. Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid, dry, meaning of arid is dry, regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu Kashmir. In nomadic farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along a definite route. The nomads move from place to place due to the restraints of the climate and land. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared by the nomads. These animals provide milk, meat, wool, hides. Meaning of hide is skin, khal, and the other products to the herders and their family. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि नोमैडिक मीन्स होता है ना कि जो इधर से उधर मूव करता रहे, चलवासी हो, और ये हर्डिंग मतलब ऐसे लोग जो अपने पशु को चराने के लिए इधर से उधर मूव करते रहते हैं. मोस्टली ये कहाँ पर प्रैक्टिस्ड है, सेमी एरिड एरियाज़ में, जो कि शुष्क एरिया हैं, अर्धशुष्क एरिया हैं, एशिया का और सहारा का और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, जैसे कि हम राजस्थान और जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं. राजस्थान एक एरिड एरिया है और इसमें इस टाइप की कृषि में, नोमैडिक फार्मिंग में, हर्ड्समैन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाकर के एनिमल्स को फॉर द पर्पस ऑफ फॉडर और वाटर एक डेफिनेट रूट को फॉलो करते हैं. उनके पहले से ही डिसाइडेड रूट्स होते हैं, उसे घूमते हुए जाते हैं और इस प्रकार मोस्टली ये इसलिए मूव करते हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल नहीं रहती हैं. जैसे कि जो
कोई भी प्रॉब्लम आ गई, यानी भूभाग में यानी किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, इसकी वजह से, या कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये जो उनके एनिमल्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो वो लोग अपने एरिया को चेंज कर देते हैं और क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े इसलिए मूव करते हैं। और इसमें मोस्टली किस टाइप के एनिमल्स आते हैं? शीप, कैमल और याक, गोट्स, मोस्ट कॉमनली रियर्ड बाय द नोमैड्स। इन लोगों को, भेड़ों को और बकरियों को और ऊँट वगैरह को ये लोग पालते हैं। और दीज एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली। वो हर्डर्स की फैमिली के लिए कुछ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा देते हैं वो एनिमल, जैसे कि मीट, वूल और स्किन और कुछ अदर प्रोडक्ट्स। याक का तो हमें मिल्क भी मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोमैडिक हर्डिंग। In my next video, students will learn about commercial farming and further classification of commercial farming. Thank you very much for the patience hearing. Student, I am just ending this video with a very good note. What a teacher writes on the blackboard of life can never be erased. Thank you very much. Thank you everybody.